हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, we were talking about Yalom, right? And मतलब उसकी जो मतलब branch है, like it's existential psychotherapy, right? So the interesting thing that I found about existential psychotherapy is that it gives you the privilege to be philosophical more than scientific, if that makes मुझे sense. बहुत फनी लग रहा है क्यों? कि हम ऐसे फॉर्मली बात कर रहे हाँ, I know. हैं। अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है इंटरव्यू चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा. मतलब it's like मुझे I think 5 मिनट लगेगा, फिर I ease into it. Like I'm already है। easing ऐसा into लग it. रहा है जैसे मैं तेरे को तो अपने बच्चों वाले एमयूएन से निकली एंड मैं फिर तेरे से आके पूछा कि तेरे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के बारे में क्या थॉट्स है। और तो ऐसे बोल रही, मुझे लगता है वो मुझे फ्रीडम देता है। सॉरी। अच्छा सॉरी। चुप रहे. वो अच्छा सबको फ्रीडम देता है. हाँ ठीक है ठीक है। हाँ. हाँ चल ठीक है सॉरी। हाँ भाई, मतलब हाँ मतलब हाँ, I personally think that it gives therapists the freedom to be philosophical, if that makes sense, because most methods in psychology are very scientific. Of course, scientific, it needs to be scientific, but आई I थिंक think the यालोम भी बहुत freedom to be, साइंटिफिक था। yes, but along with that, I think he's a perfect blend of philosophy and scientific logic, if that makes sense. बहुत बढ़िया blend है. आई थिंक I think फिलोसफी another, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबके सेम क्वेश्चंस होते हैं, किसी को मीनिंग नहीं पता right, किसी चीज का। right, right, very true. मतलब for example, so I got this book called like I downloaded Yalom's Existential Psychotherapy, and I also downloaded another book called ये Skills in मुझे क्यों नहीं Existential भेजी गई है Psychology. ट्रेटर। भेज देंगे, थोड़े मतलब कुछ घंटे पहले डाउनलोड किया है मैंने. ठीक है। भेज देंगे हम. हाँ, but I think one thing that so in that book it is pretty much discussed ki what existential psychology is and how it is different from existentialism, right? And it's like, for example, people believe that existential psychology is inherently negative, but apparently it's आई थिंक not. उल्टा है। It's no, they believe nay, they believe that it's inherently negative because existentialism has a certain degree of it's pessimistic to a certain degree. Like मैं normally, if पेसिमिस्टिक की जगह उसको रियलिस्टिक बोलूंगा। I can understand, but in the first, for example, I had my first experience in reading existential stuff. You can judge me if you want, but it's okay. I had my first experience reading existential stuff by this बाबा author called रामदेव। Mark Manson. अच्छा Nay. Nay. I'm imagining Baba Ramdev saying in his, सांस अंदर लो yoga और session. रोक के रख लो क्योंकि कुछ मैटर नहीं करता, तुम मरने वाले हाँ. हो। पतंजलि, पता नहीं. कुछ नहीं पता अंजलि, मर जाओ। हाँ सॉरी। मार्क कोई बात नहीं. मैनसन ही वो था ना, वो सटल आर्ट। Subtle Art of Not Giving a Fuck, right? उसने एक बुक लिखी थी होप के बारे में. So I was in that phase of my life where I was like, ooh, positivity, चलो होप ooh, करेंगे होप। affirmation. हाँ, होप करेंगे, ठीक है. एंड फर्स्ट चैप्टर इज एग्जिस्टेंशियल पूरा. मेरे मन में वो आया कि ऐसे 15 लोग सर्कल में बैठ के चीख रहे, होप करेंगे सब ठीक हो गया फिर। अच्छा सॉरी। हाँ बोल वापस आ। उसको बोलते हैं कल्ट सिंगिंग. बाबा रामदेव हाँ, फैला। this reminds me, have you heard of this cult? मैं उस cult का नाम भूल गई, but it's like the leader of the cult convinced, I think more than 150 people to commit suicide.
because yeah, कुछ अजीब मतलब मैं they कुछ had जोक this मारने belief वाला that था जो मैं अगर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो मैं नहीं मार सकता। ऑफ 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 रिकॉर्ड बोल दे। बोल बोल। नहीं, मेरे को एडिट करना पड़ेगा। ओके ठीक है। ओके हाँ मैम, मैं भूल गई इस कल्ट का नाम, वो सिसरली में भी है। हाँ एनीवे मैं क्या बोल रही थी? हाँ, so basically existential psychotherapy, like there are four basic questions in existential psychotherapy. One is about death, one is about isolation, one is about meaning, and one is about freedom. And interestingly enough, like somewhere or the other, human problems, they touch either, like at least one of these topics हम्म throughout a human's life. हम्म They touch one of these aspects, so it's very interesting. And somewhere I believe कि मतलब when I read, मैंने जब पढ़ा मतलब यालोम का thought process and वो सब मुझे बहुत calming लगा. You know, I felt like I was allowed to feel the anxieties I have because it is inherent in human beings. आई थिंक But वो आइसोलेशन वाला पॉइंट इधर आ गया कि तुझे पहले आइसोलेटेड लग रहा था बट अब तुझे हाँ रियलाइज हो रहा है दूसरों को भी है, तो इन सेंस तू हाँ हाँ फिर एग्जिस्टेंशियल हो मतलब गया। हाँ मतलब मुझे बहुत comforting लगा, like it did not basically, so we live, okay, वी I लिव had इन this weird, सोसाइटी बोलने वाली थी क्या तू? नहीं। मैं बोलने वाली थी कि सी हमारे जो like for example parents है, they grew up in a considerably more collectivistic culture, which is very common in Asian cultures. Collectivistic cultures मतलब उनकी जो thinking है, it's like their identity depends not only on them but others too. जैसे एंट्स की होती है। what what others perceive on them. नहीं, You एंट्स can का say एक्चुअली ऐसे ही होता है वो, उनको अपनी मतलब वो इंडिविजुअल लोग लाइफ बहुत से फर्क कोऑपरेटिव। नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कि पूरा सरवाइव करना चाहिए, तो वो हाँ हाँ आई खुद जाके अंडरस्टैंड। मर जाते हैं कि पूरा, हाँ मतलब उनका कुछ हाँ सेल्फ थिंकिंग नहीं होता, अगर तो हाँ उसको थिंकिंग बोलना चाहिए। हाँ 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 बट इट्स लाइक सिंस ग्लोबलाइजेशन, लाइक आई मीन इंडिया में जैसे तू बोल रहा था कुछ दिन पहले, लाइक सारे जो इफेक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के वो लाइक 10 साल बाद आया, राइट? So it's like our generation, I think we were one of the first generations to grow up in a more individualistic culture, right? Like our culture right now is predominantly individualistic. So the problem that happens is that our parents and our society in general is very collectivistic, but we young people, we are more individualistic. So I think there comes a conflict here because we do not have um, the people, the adults we look forward to, the literature we look forward to in the Indian context does not guide us to be individualistic. So we don't have that supportive environment to help us be individualistic, if that makes sense, हाँ, आई and to थिंक help us पहली पहली जनरेशन है जो एक्चुअली, क्या आई थिंक पहली रिलेटेड। जनरेशन है जिसको चांस मिला है, मतलब अपना हाँ इस सब क्वेश्चन करने का, खुद, तो हाँ खुद का तभी क्वेश्चन। ऐसे मेंटल हेल्थ वाला जो बूम बूम आ रहा है, बूम बूम हाँ सॉरी। हाँ बट हाँ आई थिंक पहली बार लोग ऐसे एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे चीज़ों को, इसलिए आई थिंक ज़्यादा लोग एथिस्टिक होते जा रहे हैं, क्योंकि रिलीजन का आई थिंक मेरे लिए हाँ तो मेरे को वो लगता है कि मेन उसका पॉइंट वही है कि तुम्हें एक सेट रूल दे देते लाइफ के बारे में कि तुम्हारी एंग्जाइटीज कम हो जाती हाँ बेसिकली, कि तुम्हें मीनिंग दे देते कि हर चीज का हाँ एक्सप्लेनेशन है कि हाँ इसलिए हाँ हुआ हाँ तो ये है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हाँ है तो कार्मा कार्मा है, तुम मर जाओगे तो एक और लाइफ है, मतलब हर चीज का आंसर दे हाँ देते हैं रेडीमेड। लेकिन आई थिंक पहली बार हाँ लोग हाँ एक्चुअली हाँ क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट यहाँ इंडिया में आसपास क्वेश्चन कर, क्वेश्चन करने लग गए, एंड तभी इतना एंग्जाइटी भी बढ़ रखा है क्योंकि सबको मीनिंगलेस लग रहा है सब। राइट। किसी को कुछ नहीं। हाँ 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 मतलब it's मतलब first time, you know, it feels like people are, you know, out there in the alone for the first time. हो It सकता है feels इसलिए so फर्स्ट टाइम lonely. लग रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। हाँ मतलब I'm talking in the Indian context. नहीं हाँ हम, probably. लेकिन क्योंकि हम पहली बार पैदा हुए नए हो,
हमको नहीं पता आगे पीछे का। हाँ वो तो ये पहली लाइफ है। हाँ वो तो है, तो हो वो तो सकता है है। पहले से चल रहा हो, बट हमें बट अब बड़े हो रहे तो रियलाइज हो रहा हाँ, बट आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव में इट्स लाइक आई हैवंट सीन like people who are even, let's say, 6 to 10 years elder to me है। have similar, like most of the people have similar questions as I do. हाँ मतलब That's नंबर like बहुत कम होएगा। बहुत कम number है, because they still grew up in the same collectivistic Indian society. They हम्म। did. It benefited them. It did. There were lots of benefits to it too. But right now, I mean, it feels so alone when so you grow up in such an individualistic context. मतलब तुम्हें लगता है कि you do not, मतलब मैं कैसे समझाऊं, it's like everything comes, everything becomes affected by your self esteem. तो समझ रहे हैं, जो हाँ कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में नहीं होता है। मैं कल ही पढ़ रहा था हर कि एम्पैथी कम होती जा रही है इस रीजन से, क्योंकि इतना इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं सब, इसलिए आई एम्पैथी कम अंडरस्टैंड। होता जा रहा है कि उनके जो वैल्यू है सब है वो सारा उनके करियर कि सब सब स्पेशल है, सब यूनिक है। तो इस वजह से एम्पैथी आई कम होता जा रहा है, अंडरस्टैंड। उल्टा इफेक्ट भी आ रहा है एग्जिस्टेंशियल होने के साथ। एंड ऑल्सो आई थिंक हम दोनों बचपन में इतने अकेले थे हम इसलिए इतने एग्जिस्टेंशियल है। क्योंकि आई डोंट थिंक, हाँ मतलब, मैंने तो कभी कॉन्टेम्पलेट ही नहीं करा रिलीजन, क्योंकि हाँ मैंने भी नहीं करा, लाइक आई थिंक मुझे बचपन से बहुत स्टूपिड आइडिया लगता था। आई मीन, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट मुझे पर्सनली स्टूपिड आइडिया लगता था। अरे मेरे को तो आई थिंक मेरे माँ बाप से नफरत थी, माँ बाप को रिलीजन से प्यार था, तो मुझे रिलीजन से नफरत। हाँ आई थिंक हाँ। ये बड़ा तुझे सिंपल तुझे रीजन था कि बचपन। तुझे वो, हाँ, तुझे वो फ्रिट्ज हीटर का बैलेंस थ्योरी पता है? हाँ हाँ तूने वो पूरा एक प्लस, परफेक्ट एग्जांपल दिया उसका। हाँ हाँ मुझे हाँ पता है। हाँ हाँ वो जो ट्रायंगल बन जाता है, हाँ। हाँ बट हाँ मेरे को अभी भी आई डोंट थिंक वैसे जनरली ये था, बट आई थिंक मैं बचपन से बड़ा वैसा था कि जब लोग ऐसे वो मत्था टेकने जाते थे ना कि सर नीचे करके वो करते थे, मैं मेरे को अभी तक याद है, मुझे एक भी बार नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। मुझे आई कैन जेन्युइनली लगता अंडरस्टैंड। था, मैं जब भी सर नीचे करता था मैं सोचता था अब क्या करूँ मैं। आई मेरे को इतना अंडरस्टैंड। स्टूपिड फील होता था कि मैं काउंट कर रहा होता था कि ज्यादा जल्दी ना उठ जाऊं, ज्यादा लेट ना हो जाए, हाँ ठीक है हाँ ऐसे 10 तक आई काउंट अंडरस्टैंड। करूंगा। मुझे कभी समझ नहीं आया। हाँ आई मतलब आई थिंक अंडरस्टैंड, लाइक मेरे को थर्ड फोर्थ से आई थिंक मैं कॉन्टेम्पलेट करता था कि मरने के बाद क्या होएगा, एंड ये सब फिर हाँ मैंने उसी मैं भी। टाइम वो कर लिया था बॉइल डाउन कि भगवान झूठ है। फोर्थ क्लास का बच्चा। बहुत अजीब। मेरा, आई मीन, हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। हम्म, मेरा आई थिंक ये था कि आई मीन माय डैड्स वेरी रिलीजियस, राइट? पता है मुझे। मतलब हाँ। जय चंपा। my mom my mom isn't utna religious, she's not, ठीक है? हम्म, So I think that gave me an allowance to, find out how I want to pursue this idea called God, right? हाँ So, and my definitions of God changed throughout life. I remember, like, I think till I was a child, for me God was like something like, मुझे मेरा पेपर गंदा गया, I'll spend the entire day praying कि मुझे नेक्स्ट डे अच्छे फिर मार्क्स आ जाए। टीनेज में तेरा गॉड हिमेश बन गया। चुप रह। आई कीप जोकिंग अबाउट इट, आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, बट किसी हाँ, को कभी पता नहीं बट चला। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, I think मेरा personal definition on God right now is that, I mean, there is a force of energy which we cannot prove or deny, right? I mean, हिमेश and I would ऑफेंडेड not, होगा। क्या? हिमेश ऑफेंडेड होएगा। Too sad. ओके। हाँ हाँ हाँ, मतलब I think there is some energy which we cannot prove or deny, and उसके बाद I don't want to attach any beliefs to it. हम्म, God is this, that energy created this earth, वो सब मुझे नहीं पता,
क्या किसने क्रिएट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बस इतना पता है कि देयर इज दिस एनर्जी व्हिच वी कैन नॉट डिनाई हम्म। or even prove, but somewhere it has a significant impact on the way things work. That's all. आई थिंक तू बंगाली घर में बड़ी हुई है तो लकी थी इस मामले में। इतने कल्चर्ड लोग थे तेरे आसपास कि तेरे पास अलग अलग चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ मतलब that was a really good thing for me, because I remember, like, I think the most prized moments we've had as a family was when we had very deep discussions, right? Very, very deep discussions for a very long period of time. Because I think for Bengalis, culturally, it's very important to talk. It's very important for us to talk, right? Um, पंजाबियों का it उल्टा is. होता है। अच्छा, तुम लोगों का जितना क्या कम होता बात है? करो, जितना दारू पियो बेटर अरे भाई, है। अरे भाई, मतलब एटलीस्ट नो, इधर हाँ आसपास का, मुझे बाकी नहीं पता। हाँ, आई अंडरस्टैंड। मुझे पर्सनली लगता है उस वे में आई हैव बीन लिटिल ब्लेस्ड, बिकॉज आई हैव हैड lots of perspective growing ऊपर up, से तू and बंगाली I, हैदराबाद में, हैदराबाद तो वैसे ऐसे एमलगेशन है सारे हाँ, इतने लोगों का। बहुत बहुत वैसे कल्चर्स दिल्ली के भी लोग है, रहते हैं। हाँ, लेकिन दिल्ली भी कभी है। घर से निकला नहीं तो मेरे को पता नहीं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। हम हाँ, यालोम की बात कर रहे थे, हम यहाँ कैसे पहुंचे थे? पता नहीं, रुको तो। हाँ, वो हाँ काफी लंबा ट्रेन ऑफ थॉट था इसलिए। तो हाँ एग्जिस्टेंशियल होने की बातें कर रही थी। हाँ हाँ, I mean, random, but I think I would also like to read more on Viktor Frankl, क्या? because Viktor Frankl. पढ़ा है मैंने, मेरी फेवरेट बुक है अभी तक। मेरी पहली बुक पढ़ी थी मैंने, मैन सर्च फॉर मीनिंग। मतलब जब मैंने हाँ, रीडिंग स्टार्ट करी थी फिर से, वो हम्म, मेरे दिल पे लगी थी। मेरे को अभी तक, मतलब मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा था, बट मुझे अभी भी कुछ हम्म। चीज़ें ऐसे याद है, मेरे सर में इम्प्रिंट हो रखी है। बहुत अच्छी बुक है, तुझे पता है उसके बारे में? मुझे बस इतना पता है कि विक्टर फ्रैंकल went to Nazi concentration camps and his हाँ wife हाँ हाँ। died. उसकी मैन सर्च फॉर And मीनिंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कि फर्स्ट पार्ट Mhm, उसका पूरा एक्सपीरियंस है, मैं उसका नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। तो वो पूरा अच्छा, ऐसे था कि आइडेंटिटी स्ट्रिप डाउन कर ली, ना कुछ कपड़े थे उनके पास, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कि कैसे वहाँ पर ट्रीट करते थे लोगों को। एंड बेसिकली तुम्हारी पहले की लाइफ का कुछ नहीं था, उसकी पूरी थेरेपी बनाई थी उसने, उसकी पूरी लाइफ का वर्क सब स्ट्रिप डाउन करके उसको बेसिकली लिटरली और फिगरेटिवली उसको नंगा करके डाल दिया अंदर। ठीक है, कि कुछ नहीं है तेरे पास। एंड वहां पर वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कैसे उसको, जो लोग होप करते थे, जिनके पास होप थी, जो एक्चुअली वहां भी मीनिंग ढूंढ पाए, सिर्फ वही सरवाइव करे थे, वरना कुछ वे नहीं था वहाँ सरवाइव करने का। तो वो अपना, वो उसने पूरा वो बता रखे कि कैसे वहां भी उसने मीनिंग ढूंढा। एंड इन द एंड उसका, एंड सेकेंड पार्ट उसका थेरेपी के बारे में, लोगो थेरेपी नाम था उसका। एंड आई थिंक हाँ लोगों का हाँ मतलब मीनिंग होता है या कुछ ऐसा। तो लोगोस, हाँ, ऐसा कुछ है। ऐसा। लोगोस। हाँ हाँ जो भी है, हाँ। हाँ तो वो सेकंड हाफ उसके बारे में। एंड उसका मेन पॉइंट वही था कि इन द एंड कुछ भी सराउंडिंग्स हो, जो आई थिंक काफी सारे रिलीजन्स और स्पिरिचुअलिटीज का भी होता है, कि तुम्हारे आसपास जो भी चल रहा हो, इन द एंड तुम्हारे पास जो इंटरनल कंट्रोल है वही है। एंड ऐसी सिचुएशन में भी उसने मीनिंग ढूंढा था। एंड फिर बाद में उसने अलग अलग वो दे रखे थे कि लोगों को कुछ मीनिंग मिल जाता है लाइफ में, तो एकदम से स्विच, मतलब जैसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है वैसे लाइफ बदल जाती है। उसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया था कि आई एग्री। एक एक ना, मतलब बेसिकली ओल्ड कपल था काफी। एंड वो काफी मतलब ग्रीफ में था, आई थिंक हस्बैंड उसका। एंड वो उसके पास थेरेपी के लिए आ रहा था, फ्रैंकल के पास। ठीक है। एंड आई थिंक एक सेशन हुआ था जब फ्रैंकल ने उसको बस मीनिंग देने के लिए बोला, या पर्सपेक्टिव देने के लिए बोला कि तू सोच अगर तू पहले मर जाता बेसिकली, राइट, तो तेरी वाइफ की क्या हालत होती। ठीक है। तो उसको रियलाइज हुआ कि बहुत ही गंदी हालत हो जाती जैसे मेरी हो रही है। ठीक है। एंड उसको ऐसे इंस्टेंट मीनिंग मिल गया कि मैं इसलिए अभी ऐसी हालत में हूं ताकि मेरी वाइफ ना हो पाए। ठीक है। बेसिकली जो समझ रही है कि उसको सफर करने की जगह उसको बचाने के लिए मैं सफर कर रहा हूँ। तो उसको एकदम से मीनिंग मिल गया।
कि मैं इसलिए सफर कर रहा हूँ क्योंकि वो नहीं कर रही, समझ रही, एंड उसकी लाइफ एकदम से बेटर हो गई कि कुछ मीनिंग आ गया, ऐसे वो इंस्टेंट वो था। हम्म, ऐसे हम्म। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। मैंने एक और बुक डाल रखी है उसकी, मेरे को पढ़नी है, बहुत बढ़िया इंसान। मुझे लेकिन वो आई उसके उसके बारे में बोल। आई थिंक वो थोड़ा पेसिमिस्टिक है कुछ सेंस में, बट आई थिंक काफी अच्छा भी है, मतलब आई थिंक थोड़ा रियलिस्टिक है। I mean, I personally believe if you talk about hope along with a healthy dose of pessimism, that's healthy, that's हाँ realistic. यार वही Because हाँ if you're too positive, like and talking about something like hope, you tend to be delusional. I मैं think he इसको must have had the रियलिस्टिक perfect. ऑप्टिमिज्म बोलता हूँ। Hmm, I तुम understand. ऑप्टिमिस्टिक रहो बट उतना भी नहीं कि तुम कोई मतलब कुछ ग्राउंड्स नहीं Delusional है हो जाए. तुम्हारे पास। हाँ, हाँ. तेरी आवाज That's कम आ one रही है, very prevalent belief. Huh? तेरी आवाज कम आ रही है। Hello. हाँ हाँ. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी was that like for example there's this belief very prevalent in the spiritual community that I told you about, right? It's like love and light. If everyone would just love each other, world's problems would be solved, right? Or beliefs like no matter what happens, love everyone. जो जो बहुत delusional belief है. Sure, it's optimistic, it's positive, it probably might yield some good benefits for a small period of time in your life, but it's delusional. आई It is delusional. थिंक लव से बेटर कंपैशन ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा, लोग का कंपैशन बिल्ड कर ले, बट रियलिस्टिकली right. एक वो सारी दुनिया नहीं करने वाली ऑब्वियसली, तो तुम। And तुम सारी दुनिया पे कर भी नहीं पाओगे realistically, to be very honest. हाँ वो है Like बट for you, उसमें, हाँ आई एग्री, बट उसका बेसिकली वो था कि पर्सपेक्टिव लेना दूसरों की लाइफ से कंपैशन के साथ। हाँ आई थिंक कि सब पे तो नहीं कर सकते, बट उसकी तरफ वर्क करना impossible है तो खुद एटलीस्ट। तो you can try. See, like if I bring you, if I bring you a rapist, okay, who हम्म has no um regrets about what he did. In fact, he's extremely proud of what he did, and the person he raped has died in sheer pain. I think I think both of us would really struggle to be compassionate with that person. I बट would आई डोंट struggle. थिंक कंपैशन मतलब ये होता है कि तुम ठीक हो, समझ रही है। कंपैशन मतलब जैसे ये हो सकता, तू हिटलर का ले ले, ठीक है वो बहुत हाँ, मतलब, मुझे उसके मतलब बचपन के लिए बहुत कंपैशन ठीक है, होता है उसके मतलब वो लिए. बहुत ही घटिया मतलब बहुत, मतलब आई थिंक पूरी दुनिया अग्री कर सकती है कि घटिया इंसान था, बट तुम उसके हाँ, लिए फिर भी कंपैशन हो सकता है कि वो इतना सारा ट्रॉमा था उसका, मतलब ठीक नहीं करा ऑब्वियसली, और लाखों लोगों को ट्रॉमा दिया, बट स्टिल तुम किसी वे तक कंपैशनेट हो सकते हो अपने मन में। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको सही बोल रहे हो। तो आई थिंक लव का मतलब आई थिंक वो हो जाता है कि तू समझ रही है कि तुम उसको साथ में एक डिग्री में सही भी बोल रहे हो, ठीक है। लव एक आई थिंक हाँ, अटैचमेंट के साथ आता है, आई डोंट थिंक कंपैशन अटैचमेंट के साथ आता है किसी। हाँ. I get हाँ that. बट आई थिंक But स्टिल फिर भी I मुश्किल think होगी आई थिंक मुश्किल सब। तो होगी. हाँ Like for example, think about a child who got. मतलब it's like let's paint a situation, right? कि evacuation हो रहा है जूस का, ठीक है? And somehow the parents of this child have somehow um protected her. They've probably sent her away to another country. कैसे भी करके कुछ कुछ ऐसे किया है, ठीक है? As a हम्म refugee कुछ कैसे किया है? And the parents went to the concentration camp and they died. हम्म वो बच्ची जब बड़ी होगी, हम्म she has had a major loss in her life, right? हम्म वो and a traumatizing loss. वो बच्ची जब बड़ी होगी उसके लिए हिटलर पे कंपैशन करना बहुत मुश्किल है because he is an oppressor there. Being compassionate towards your oppressor is very difficult. आई थिंक लव It is करना very मुश्किल है, कंपैशन फिर भी पॉसिबल है। मुश्किल है. I would like to argue मुश्किल मुश्किल है. है लेकिन Poss- आई थिंक मुझे इस मामले में possibility. दलाई लामा बहुत बढ़िया लगता था। वो वाला इंटरव्यू याद है जो उसने उसके साथ था, जॉन हाँ, ऑलिवर हाँ, के साथ, कि वो चाइना वाले लोगों की हाँ. बेइज्जती मार रहा था
बट साथ में फिर भी उनको मतलब, तो समझ रहे, स्टिल उनके लिए वो था, मतलब कुछ दिख रहा था हाँ कि ऑब्वियसली मजाक कर रहा है, एंड स्टिल वो उनको ह्यूमन मानते हैं, कंपैशनेट है, हाँ। जबकि वो इतनी, उसकी पूरा मतलब उसके जो सारे लोग थे, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हम्म, करे, वो स्टिल दिख रहा था, अगर उन लोगों मतलब वो स्टिल कंपैशनेट हो सकता उनकी तरफ। तो आई थिंक हम्म, मुझे उसका वो बहुत ही बढ़िया लगा था। हम्म, हम्म। हाँ। हाँ, बढ़िया तो था वो। हाँ, बट सॉरी, तू ऐसे बढ़िया तो था, अच्छा तो लगा। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, but again it's like a part of me believes that, I mean, I'm talking about it from a, I don't know, psychological point of view, I don't know, but it's like, at least at the start of getting over your trauma, it is very healthy for you to not be compassionate towards your oppressor. हाँ नहीं, ऑब्वियसली वो एंगर निकालने की तो जरूरत होती है। It is very healthy for you to actually be angry and frustrated at your oppressor. Like your oppressor हाँ is in a position superior to you. नहीं, It मैं वो, is you who needs. कंपैशन अलग चीज है, एंड अगर तुम किसी पे, किसी को ठीक बोलना है, उस पर गुस्सा निकालना अलग चीज है। आई हाँ थिंक हाँ साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, I understand. बट हाँ, मैं अग्री करता हूँ, वो सप्रेस करना सही नहीं होता कि तुम बस अच्छा अच्छा हाँ सोचो उसके बारे में, and कुछ हाँ गलत सोच ही नहीं सकते। आई थिंक वो पॉइंट नहीं होता। हाँ, I think that perpetuates trauma even more, personally. हम्म। हाँ हाँ, but I think we were talking about Yalom, right? And when I read his The Gift of Therapy, like I'm reading it still, it warms your heart because Yalom, it's like that existentialism, okay? It makes him very, like you were talking about compassionate, right? It makes him very compassionate. You know, it doesn't make him the fixer of the problem per se, हम्म। हम्म। which I think most of us, when we get to studying psychology and therapy and things like that, we all come with a fixer attitude. If हम्म। you notice around you, like most of your peers, probably, I think most of them will have some sort of a fixer attitude. आई थिंक 60% फिक्सर्स होते हैं, और 40% साइकोलॉजी करना ही नहीं चाहते। आई थिंक हाँ यही रेशो है। हाँ हाँ। हाँ, I understand. I mean, somewhere I also believe that people come to study psychology to subconsciously fix their problems too, but that's another thing. हंड्रेड But परसेंट सारे फक्ड अप होते साइकोलॉजी वाले। आई थिंक पहला स्टेप वही होता है सेल्फ नॉलेज के लिए। हाँ, और आई सेल्फ थिंक नॉलेज बाकी की। जो पार्ट है जो ये फक्ड अप नहीं है, आई थिंक वो सारे मेटल म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, और वो रॉक बैंड ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके आई थिंक बस यही ओके दो दो कैटेगरीज है। ओके देन। हाँ, ओके एक को फिक्स करना है, एक को सर हिलाना है। ओके, वो क्या ग्रुप था, भूल गई उसका नाम। Metallica was actually a group of Jewish psychology students, and they graduated. सबको हिटलर का they ट्रॉमा था। वो हाँ, तभी सब सर हिलाने लगे थे। exactly. They no, it's like their parents had Hitler का trauma. ठीक है, they were first hand refugee students, मतलब first generation Americans. They studied in Harvard, and then one fine day they realized that the psychology shit is उनको not लगा hitting सर them. हिलाने में ज्यादा मजा आ रहा है। Exactly. Somatic therapy. ठीक। That's where somatic therapy हाँ, came वो from. एग्जैक्टly वही होती है। They started playing with बाल a bunch लंबे of करना metal सोमैटिक थेरेपी होता है लड़कों के and ये करना। लिए। यालो मैं एक्चुअली वो, जो तूने पढ़ा ना, वो एक्चुअली जूइश था, और उसके ऊपर वो था हाँ एंटीसेमिटिज्म वाला सारा हाँ, इन्फ्लुएंस तो। यालम से, हाँ, यालम को पढ़ के मुझे एक और इंसान याद आया, हिज नेम इज बाबा रामदास। मेरे को लगा तो बाबा रामदेव बोलने वाले थे, मैं मुक्का मार रहा था कि अभी फिर से दो बार जोक नहीं करते एक बारी में बाबा रामदेव का। हेलो हाँ। हेलो, हाँ। नहीं तू कट गया।
तू कट गई। हाँ, ये जो बाबा रामदास है, he was in 50s, he was a contemporary of Yalom actually, and Yalom has read his works, right? है So yeah, Yalom and Baba Ramdas were at that point were psychologists at that point of time where LSD was gaining popularity. यालोम ने एलएसडी Psychologists, करा था। मुझे पता है, मेरिलिन को भी करवाया था, but वो anyway, उस point उगता भी था। है। हाँ हाँ, उसने लिखा तो था कि वो रेगुलरली अपने पार्टीज में वीड में इंडल्ज अरे करता था। भाई, but I can understand the context, the social context उस time पे, because जिस time पे यालोम ये सब मतलब he was experimenting with मतलब LSD on himself and stuff एलएसडी like तो that, तो उसने उस आई time पे थिंक वो सिर्फ रिसर्च वाले पॉइंट ऑफ व्यू से करा था ना। हाँ हाँ मुझे पता है। हम्म। उसी point I'm talking about late 1950s, early 1960s, right? उस period में तो हाँ बाबा ऐसा रामदास कुछ was था, हाँ। actually हाँ, he was actually a Jewish psychologist who taught at Harvard. रामदास, और उसके आगे नाम बाबा था उसका। मैं बताती हूँ उसकी मतलब what exactly happened was his name, उसका अलग नाम था पहले. He was a Jewish psychologist. He taught at बाबा Harvard. रामदेव था पहले। बस उसने यार दास लगा उसने बस दास लगा दिया एंड में। अच्छा सॉरी, तू प्लीज बोल। बाबा रामदेव प्रेजेंट कैटास्ट्रोफी है, ठीक है तो चुप है। अच्छा। हाँ anyway, what was I saying? मैं कुछ बोल रही थी हाँ. So this Baba Ramdas, this guy, what happened, he was a Jewish psychologist, right? तो उस टाइम पे LSD पे रिसर्च हो रहा था. So he had this assistant professor who told him कि do you want to come to South America with me, try ayahuasca. I pronounced it wrong maybe, but you know that, right? It's a psychedelic. So Baba Ramdas was very interested and he went, मतलब उसने mention किया कि he went for years and years of psycho analysis, right? लेकिन तूने इतना वैसे बोला, he was very interested। नशेड़ी लोग डिस्क्राइब कर रही है तू। हाँ हाँ। नहीं मतलब इट्स लाइक ही वेंट फॉर साइको एनालिसिस इतने सालों तक, बट उसका कोई प्रॉब्लम क्लिक नहीं हुआ. तूने देखा है जैसे यालोम ने भी डिस्क्राइब किया दैट ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द स्टेट ऑफ थेरेपी उस पॉइंट भाई पे. साइको एनालिसिस की तो इतनी बेइज्जतियां सुनी है मैंने इस पॉइंट पे। हाँ, I can understand. I think Carl Rogers was also. I think Carl Rogers was also contemporary उस point पे, and even he was not. He did not agree with that at all. Right. So Ramdas went to South America. He tried ayahuasca, ऐसा कुछ हुआ. फिर I think आके ना उसने कुछ गड़बड़ की मतलब drugs को लेके. I think he pushed the agenda of psychedelics too much. इंडिया No, में। he was not drug. No, US में, Harvard में. He हम्म। pushed the agenda of it too much, and Harvard ने उसको निकाल दिया, basically. हम्म। So what happened after that? He decided to, travel the world and try to gain more perspective on the world because he realized that this more उस time का जो contemporary psychology था that would not help him. So he came to India, and I think out of sheer luck, he ended up meeting this person called Neem Karoli Baba, who also influenced Steve Jobs. अच्छा। Right. Steve Jobs was very influenced by Neem Karoli Baba, right? And apparently, like he has deeply mentioned, Ramdas has mentioned in his book about Neem Karoli Baba, and he definitely seems like a saintly person. I mean, he used to stay away from most people. He used to live in a cave. He survived on milk. ज्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है. शायद एक एक दो मेटाफर्स बोलेंगे पूरे दिन में तुम्हारे लिए, जस्ट एक मेटाफर बोलेंगे, and he let you contemplate on ये कोई मूवी का कैरेक्टर लग रहा है। ठीक है, that. कि जैसे स्टोरी स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए एक लाइन बोलेगा पूरे एपिसोड में। I can understand. I get that. देखो पता है, हाँ कुछ साइकेडेलिक्स के वैसे, जैसे एलएसडी है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया से मैच करते हैं।
हैं. तो जो इफेक्ट्स So आते what हैं if एलएसडी करके उसको मतलब स्किज़ोफ्रेनिया वाले काफी मैच करते हैं चीजें. we have the same chemicals in our brain, which when go out of balance cause schizophrenia? I mean, प्रोबेबली it can be पता a possibility, right? नहीं, आइडिया नहीं. I mean, I've read about this thing, you know, it's like, so if you go to YouTube and basically they talk about the pineal gland, and it's like, if you do certain practices, right, हम्म. on a daily basis, they you can apparently decalcify your pineal gland. Like apparently क्या होता है कि due to certain factors, lifestyle factors and environmental factors, there's a layer of calcium around your pineal gland. Apparently. तू ना And गलत कोनों पे चले जाती है कभी कभी यूट्यूब के मेरे ख्याल से. नहीं, I'm just curious. मुझे जानना जानना मैं पसंद है समझ कि रहा हूँ मतलब बट क्या ऐसा बात कोई कर. लग रहा है जैसे 8th क्लास के बच्चे ने बनाया है जो पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा है. देखो अगर अरे तुम्हारा तो सुन ना. मील लाइन के आसपास कैल्शियम आ जाता है तो सब खराब हो जाते हैं. तो तुम नहीं, दूध कुछ पीना छोड़ खराब नहीं होता. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. It just gets, मतलब it's like pineal gland has the capacity to release DMT in your body. ठीक है. अच्छा. But because of certain lifestyle changes and environmental factors, वो calcify हो जाती है apparently in most human beings. So with certain practices you can you know remove that, if that makes sense. So I was reading about जैसे कि DMT, दूध नहीं like पीना. naturally produced DMT. हाँ मैंने पढ़ रखा है. Hello. हाँ. हेलो. क्या क्या क्या. मैंने हेलो. भी पढ़ रखा है वो थोड़ा. हाँ, मतलब हाँ. दूध नहीं पीना ऐसा कुछ नहीं बोला है. आई वाज रीडिंग कि कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक व्हाट दे मेंशन्ड वाज कि हम लोग इतने इतने इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास रहते हैं ना राइट नाउ, like our phones, our laptops, our Wi-Fi routers, क्या उन्होंने everything. बोला कि फोन से कैल्शियम उड़ के जाता है सीधा ग्लैंड में. नहीं नहीं ऐसा नहीं. नहीं इट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. But it's just that human beings naturally do not have not evolved on a biological level to be around so many magnetic electromagnetic waves. हाँ नो So शिट. if that makes right, हाँ. तो उससे of course मतलब प्रॉब्लम होती है, लाइक उससे ना मतलब imbalances होती है बॉडी में, which leads to calcification around the pineal gland apparently I may be अपेरेंटली wrong too. बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ पर. हाँ, apparently बहुत बड़ा वर्ड है. I'm not claiming anything. I'm not claiming to know about this. This is what I've read till now. I may be wrong. But हाँ, I was reading about DMT because मुझे जानना था कि if body can create its own psychedelic experience, if that makes sense. हम्म. हाँ. मैंने पढ़ा है कि मेडिटेशंस में आते हैं लोगों को. कुछ लोगों को साइकोटिक अटैक भी हो जाता है उसके बाद मेडिटेशन के बाद क्योंकि वो हैंडल नहीं हाँ, कर पाते. I मतलब can वो ऐसा understand. नॉर्मल मेडिटेशन नहीं, वो जो लंबे लंबे रिट्रीट्स होते हैं उन पे. हाँ जी, I understand. I हाँ. understand. बट मुझे कुछ There is पता a नहीं इस सब के बारे में. there are बट breathing techniques. Do you know that? क्या. There are different types of breathing techniques, like in combination with meditation, that people do for this. तो ट्राई कर रही थी ना कुछ टाइम पहले. एक साल पहले I tried it एक बार. मैं तेरे को I बोल didn't रहा था exactly. नशेड़ी है. I just wanted to see what happened. I वही didn't. I बोलते हैं didn't लोग पहली exactly. बार. चुप रहे. Um, I didn't exactly hallucinate per se, हम्म. but बहुत अजीब feeling थी. It was very interesting. It's like my perception was very different उस time period में, बहुत अलग. It felt like time had slowed down completely. ठीक है. And it's like I felt like I was not me. तो बहुत अजीब था. But I didn't hallucinate. कि ये हो रहा है, तारे गिर रहे हैं, तारे गिन गिन. ओके सॉरी, तारे गिर रहे हैं. ठीक है.
ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ हेलुसिनेशन नहीं हुआ था, बस मेरा परसेप्शन बहुत बदल गया था उस पीरियड के लिए, एंड आई हैड अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन इन माय बॉडी. हाँ. जैसे कि तो हाँ. जैसे कि तेरी बॉडी कैल्शियम प्रोड्यूस करने लग गई थी और तू गाय बन हाँ गई थी, मुझे तभी तेरे को लग रहा था तू नहीं एग्जैक्ट एग्जैक्टली मैं बता तो रही हूँ, आई थिंक मैं सीक्रेटली गाय हूँ. है. सॉरी, मेरे मन में इमेज आया है. I'm in the closet. I'm in the तूने farm मुंह closet. खोला, तेरे मुंह से दूध ऐसे उड़ उड़ के. सॉरी. ओके सर. हाँ. हाँ, बट मैंने इन सब के बहुत बारे में सही. इतना पढ़ नहीं रखा. आई थिंक इससे मैंने वापस थोड़ा उस पढ़ा पे है. आ सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ने मेरे लिए एक चीज अच्छी करी है कि क्या? मैं बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता. जो मेरे लिए पहले बहुत मुश्किल था. हाँ. ठीक है, लेकिन वो हाँ बहुत आई ही एग्री. बड़ी चीज है आई मेरे लिए थिंक, भी कि तुम्हारे पास हर चीज का आंसर बहुत ही नहीं बड़ी है. चीज नहीं है. बट मुझे एंड आई यालोम फील की ये चीज पीसफुल. बहुत अच्छी लगी थी. मुझे दलाई लामा की ये हाँ चीज मुझे बहुत भी. पसंद है. मैं एक बुक पढ़ रहा था अभी, वो हाँ. आर्ट ऑफ हैप्पीनेस. तो हाँ. उसमें था कि वो बेसिकली उसका प्रेमिस ये था ना कि एक साइकियाट्रिस्ट ने दलाई लामा को इंटरव्यू करके बेसिकली दोनों का बुद्धिज्म और वेस्टर्न साइंसेस का मिक्सचर बना के बुक लिखी है. ठीक है, कि साइंस अच्छा. और उसका क्या, कहाँ कोइंसाइड हो रही है बेसिकली. ठीक है, तो हम्म. वो साइकियाट्रिस्ट बार बार जाके दलाई लामा से क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये क्यों होता हम्म. है, ये क्या होता है, कि स्टडीज मतलब प्रेजेंट कर रहा है, बोल रहे हैं हम्म. ये समझाओ ब्ला ब्ला ब्ला. और उसको लगा था कि वो बस आंसर देगा एंड वो ऐसे एक बुक लिख देगा कि वो ये आंसर लाइफ का. लेकिन फिर उसको हम्म. रियलाइज हुआ कि दलाई लामा हर चीज पे हंस के बोल रहा है कि मुझे नहीं पता. एंड में था कि क्या. और उसका एक तो लाफ भी इतना बढ़िया है ना, तो मतलब मैं इमेजिन कर हाँ सकता हूँ. मुझे बट उसका लाभ बहुत. हाँ, बट मतलब कितना वो है कि वो इंसान इतना बड़ा लीडर हाँ. माना जाता है, इतना बड़ा स्पिरिचुअल लीडर है, एंड उससे क्वेश्चन एंड पूछे बट जा रहे ही हैं, वो बोल रहे हैं इतना इजीली हंस हंस के कि मुझे नहीं पता. जो आई थिंक आना चाहिए. आई थिंक वो आना चाहिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये. एक अच्छा चीज है कि तुम्हें हर चीज बहुत नहीं अच्छी पता है. और सब लोग वही कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं. हर चीज का आंसर देने की एग्जैक्टली exactly. जरूरत नहीं है. आई थिंक नहीं है. थेरेपी में वो प्लस हेल्प करता है जब तुम वल्नरेबल होते हो इस सेंस में. बहुत बहुत मतलब देर इज दिस थेरेपिस्ट एंजाइटी ना, when a patient sorry when a client comes, I'm so sorry, when a हाँ. client comes is Yalom talked about it. मुझे पर्सनली लगता है कि जब तुम जैसे we discussed some time ago कि I think most of the therapists, right, they tend to assume an image, they tend to create an image and live in that image हम्म. with the client, and clients tend to idealize therapists, हाँ हाँ, एग्री. हाँ. right? The problem with this is that एक तो the therapist cannot be human उस हम्म. context में, बहुत हम्म. मुश्किल हो जाता है. हाँ. And the client feels some sort of an inferiority complex with the therapist, because in interpersonal relationship the best form of learning happens through modeling, according to Albert Bandura, right? Modeling works in therapy a lot. स्मार्ट एस. अच्छा, सॉरी. नहीं मैंने कुछ दिन पहले ऐसे पढ़ा साथ था. में आई रेफरेंसेस दे के बोल रही है. हाँ. सॉरी. हाँ, नहीं बोल. नहीं, you can check it out, right? Like नहीं, मैं social ट्रस्ट cognitive करता हूँ तेरे scientists. हाँ. Thanks. I mean, social cognitive scientists really believe that modeling को. deeply हाँ, नहीं, मैंने influences पढ़ how रखा है people. सोशल लर्निंग थ्योरी. हाँ, मेरे को भी पता हाँ. है. हाँ हाँ. हाँ. So I think a part of therapy is also the client learning from the therapist, if that makes sense, and of course the हाँ हाँ. therapist learning from the आई client, थिंक यहाँ पर right? वो तेरी वाली बात आ जाती है कि टू मच होप ना, मतलब एक मॉडरेशन में होप मिलना चाहिए कि बेटर जगह हाँ है moderation. जाने के लिए. बट ऐसा भी नहीं कि हाँ. उनको ऐसे तुम गॉड लाइक फिगर बना दो कि हाँ उनको जी. सब पता है. आई थिंक ऐसे. हाँ जी, ऐसा कोई. हाँ. And I think if you let's say you have a client coming up to you, let's say hypothetically I'm a therapist, right, and have a client coming to me and the client asks me a very difficult question ki Nyanaka, I don't see a meaning in my life right now, right? हम्म. I feel like committing suicide. I don't think I'm going to last. I'm going to live beyond 3 weeks. Can you help me construct a meaning? Can you tell me what the meaning of life is? And it's a very difficult question कि मुझे खुद नहीं पता. And I think if I be vulnerable and मतलब personally I believe कि instead of trying to fix it for her,
if I be vulnerable and tell her that this is the same question that I'm, trying to figure out on my own, but I I think want to remind you that you're not alone on this. Well, I won't exactly say this, but of course, like I would आई be pretty थिंक vulnerable उस after. टाइम पे यालूम का जो मैंने देखा था, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, इंस्टेड कि उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करो लाइफ में। जो भी उनका Mm, प्री एग्जिस्टिंग वो है, जैसे वो अगर रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनको करने mm, दो। ठीक है, उनको ऐसे एग्जिस्टेंशियल मत करो कि हो सकता है कि लाइफ ना हो उसके बाद। उनको लगता है आफ्टर लाइफ है, उनको मानने दो। क्योंकि mm. उनके आखिरी टाइम में तुम्हें उनको और एंजाइटी नहीं देनी कि हो No, सकता है कि तुम। I'm not going to. I don't think I would prescribe new things. I would just say that you're not alone in feeling this way. हम्म। I understand what you're feeling, and somehow, बहुत मुझे personally लगता है shared pain eases anxiety. If that makes sense. जब तुम्हें लगता है कि दूसरे भी ये सोचते हैं, I'm not alone in this. I हाँ, think वो बहुत anxiety ease करता है. आई थिंक कई And बार बढ़ भी जाती है, हो किसी के पास आंसर नहीं है। I can understand. But किसी को I नहीं think पता if क्या you हो रहा है। contemplate deeper कि किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, but some of them still ended up leading very बहुत ही fulfilling lives. ह्यूमन कंडीशन है, हाँ। हाँ, तो I think वो बहुत anxiety ease करती है. I हम्म। mean, reading Yalom, I felt like it was okay for me to be anxious. It was okay for हाँ me to be scared of isolation, भाई, मुझे बहुत डर right? लगता था, पता है कि अभी बैचलर्स खत्म हो गई, साइकोलॉजी हो गया, मास्टर्स में भी लग नहीं रहा कुछ पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद तो हाँ, तुम बन गए साइकोलॉजिस्ट, कुछ हाँ, तुम्हें कुछ आता ही नहीं होएगा। ठीक है, I जैसे understand. स्पेशली जो यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा था हाँ मैं पढ़ लूंगा खुद, अगर कॉलेज में नहीं पढ़ाते Hmm, मैं बुक्स पढ़ लूंगा, ये वो hmm, ये वो। बट यालूम की वजह से मेरा ये हो गया कि भाई वो अपनी एटीज में भी अभी भी सीख रहा था कि लोगों को hmm, कैसे, मतलब वो तब भी रेडी था बोलने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई। एंड वो एक hmm, एक दो से केसेस ऐसे थे कि उसने क्लाइंट को डायरेक्टली बोला कि हाँ वो मेरे साइड से मिसहैपनिंग था, मैंने ढंग से प्रोसेस नहीं करा था। एंड hmm, मतलब मैंने गलत डायरेक्शन में ले लिया कॉन्वर्जेशन को, या मैंने कुछ गलत बोल दिया। एंड वो 80 साल का इंसान, इतना सारे एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब hmm, सीनियर साइकियाट्रिस्ट था, इतना मतलब वेल नोन था, इतने लाखों मतलब हजारों पेशेंट्स लिए होंगे जो भी। बट hmm, उसके बाद भी मुझे लगा कि थोड़ा शांति मिला मेरे को कि गलतियां hmm, होती रहेगी, तुम सीखते रहोगे कंटिन्यूसली। लेकिन बस थोड़ा ओपन माइंड के साथ जाना पड़ेगा, एंजाइटी वाली उतनी चीज नहीं है। अगर तुम्हें नॉलेज हो hmm, और इंसान को आई थिंक नुकसान ना हो रहा हो, आई थिंक वो मेरा बेसिस है hmm, hmm. कि मतलब अगर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा, Hmm. एटलीस्ट इतना मैनेज कर लो कि कुछ खराब नहीं हो रहा उसका। ठीक है तो खराब नहीं कर रहे हो, हाँ. हाँ हाँ, आई थिंक बस तुम्हें Hmm, उतना नॉलेज हो तो उसके बाद तुम उस पर बिल्ड कर सकते हो बस। आई डोंट थिंक पूरी लाइफ कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कोई भी क्लाइंट ले लो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा कामिंग था हाँ, मुश्किल होगी कि बहुत. हाँ, Hmm, कि hmm, वो इंसान तो उस एज पे भी इतना ज्यादा हम्बल हो पा रहा है। उसका था, उसका भी जो वो यूब्रिस बोलता था कि उसको लगता था कि वो सबको ठीक कर देगा, एंड उसका वो है कि hmm, हर क्लाइंट को ठीक करना है उसको। आई थिंक वो बड़ा वैलिड चीज है। बट हाँ, हाँ, मतलब बहुत ही उसने इतना हाँ, ट्रांसपेरेंटली लिखा हुआ है ना सब कुछ, एंड मतलब hmm, बहुत ही ऑनेस्टली लिखा हुआ है। आई थिंक सबसे अच्छी चीज मुझे वही लगी थी कि hmm, इतना ऑनेस्ट कैसे हो सकता है कोई। I guess। hmm, हाँ, क्योंकि मेरे को उसका भी एंजाइटी रहता है आई थिंक कि मैं क्लाइंट के साथ अपने वो कैसे हो सकता हूँ, ऑनेस्ट कैसे हो सकता हूँ, या मैं हाँ, वल्नरेबल कैसे हो सकता हूँ। एंड फिर hmm, ऐसा hmm, ऐसे वो रहता था कि तुमको इमेज बना के रहनी पड़ती, मतलब समझ रही कि तुम्हें एक रोल प्ले करना पड़ रहा है कि तुम समझ hmm, रही कि तू मतलब थेरेपिस्ट का रोल प्ले करना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है, कि तुम उससे बेटर हो एंड वो तुमसे नीचे है, हाँ, इंस्टेड के तुम दोनों इक्वल्स मान रहे हो अपने आप को। तो हाँ, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहा उसके साथ मेरा, कि मेरे को एटलीस्ट रियलाइज हुआ हाँ, कि तुम्हें सब नहीं आता। हाँ, हाँ, तुम वल्नरेबल हो सकते हो। हाँ. I think that's very important. I mean, of course, like maintaining a certain boundary. It's very important to
be vulnerable and transparent to build that intimacy with the client. You know, the healthy emotional intimacy with the client. I mean, I read it somewhere, you know, like there's this attachment theory, right? John Bowlby attachment theory. So they talk about secure attachment, anxious attachment, avoidant attachment, disorganized attachment, things like that. तो उसमें ये बोला गया है कि if you do not have anyone around you to help you with your attachment needs, the best person to go to is a therapist, because that therapist will build a very secure relationship with you, and you can model that relationship with others. तो मुझे बहुत बहुत सही लगा. I mean, the therapist should be such a safe space, where the client is able to, you know, rework his attachment needs, his or her attachment needs, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. And you know, like, I don't know, I randomly thought about this, like, you know, if, for example, if a client comes to you and tells me that I'm very scared of relationships because all relationships have to end, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये thought आता है कि you can always, even if our therapy terminates, you can always, I think this might be a wrong train of thought, but it's like, you can always come back to me. It's like I we think might not be. dependency create हो जाती है उससे. I don't think वो उतना healthy होता है, क्योंकि जनरली टर्मिनेशन रखते हैं थेरेपी का कि तुम इन दी एंड, मतलब वो एक सेंस में सच भी है क्योंकि 10-10 20-20 साल बाद भी वापस आते क्लाइंट, बट इन दी एंड हाँ, मतलब when you need to talk टर्मिनेशन about, होता है उसका भी. तो आई डोंट थिंक वो मतलब ना हेल्दी वे है देखने का, कि क्योंकि उसका पॉइंट ही वो था कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ अपना लाइफ जीने के लिए. तो this डिपेंडेंसी. brings me to another point. हाँ, कि you know, like एक सेकंड पहले those मैं एक चीज people. बोलूं कि मतलब मैं सिर्फ अभी हिप्नोथेरेपी वगैरह के सेशंस ही ले रहा हूँ, बट उसमें भी मेरा इतना हेल्प हो गया इसकी वजह से, यालों पढ़ने की वजह से, कि मैं समझ रही है, मतलब ऐसे प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट तो मैं हूँ नहीं ऑब्वियसली, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वैसे वाले क्लाइंट्स आते हैं जिनके मेरे को पता है जो मैं मैनेज नहीं कर सकता, उनको मैं भेज देता हूँ. बट एटलीस्ट जो हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड चीज़ें के लिए भी आ रहे हैं, उनको भी एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, समझ रही है, ग्रोथ के लिए. वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ हिप्नोथेरेपी कर दो, समझ रही है. तो उस सेंस में मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प रहा है मेरा, कि मैं खुद से थोड़ा सेल्फ डिस्क्लोजर बढ़ा है, थोड़ा वल्नरेबल होना मैं भी शुरू हो अपनी साइड से, कि समझ रही कि एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखा है कि जो सेशन में जो वो टेंशन रहता थोड़ा सा, थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला टाइप, वो बहुत कम हो गया. एंड समझ रही क्लाइंट हंस रहे आगे से, समझ रहे थोड़ा लूजन अप हो गए हैं, थोड़ा एक्चुअली इंसानों की तरह बात कर रहे हैं इंस्टेड, समझ रही है. तो पिछले कुछ टाइम में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख गया मुझे कि मुझे रियलाइज हुआ है कि जब मैं बाद में साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, जब मैं एक्चुअली अपना प्रैक्टिस सेटअप करना चाहूँगा, तो मैं एटलीस्ट ये इसको बेसिस लेके चलना चाहूँगा, समझ रही, कि ये बहुत ही हेल्पफुल. एंड आई थिंक सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आई थिंक रिलेशनशिप्स में भी, आई थिंक हम दोनों का ये ऐसे हुआ है रिसेंटली ना, कि जब से ये सब हुआ है दोनों रिलेशनशिप बहुत बेटर हो गया, जबकि इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है, बट इतना शॉर्ट I think पीरियड it's में. just been a week. हाँ, बट इतना शॉर्ट पीरियड में मुझे इतना बेटर फील हो रहा है, मतलब ऐसे हाँ, ज्यादा ह्यूमन फील हो रहा है. तो आई थिंक हाँ, वो काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में उसका. हाँ, I agree. Like, मतलब फिर it's like, you know, we both had difficult childhoods, right? So when you have difficult childhoods, you feel like you have to assume an image, not an image, but you get the idea. Like you have to be नहीं, like मेरा तो था something. वो इमेज वाला बट हाँ, हाँ, मतलब मेरा भी था. Like, you know, for me it was like, you know, I have to be as cool as possible. Like I have to be as healthy as possible. इतना बढ़िया वे ठीक है. में बोली, सॉरी थोड़ा ऐसे स्टाइल के साथ बोली थी. Yeah, मतलब I'm just saying it ironically, like in a very sarcastic, like मुझे बहुत cool दिखाना था खुद को, ठीक है, कि हाँ मुझे तो देख तू किसी चीज कूल का है, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है नहीं, I'm talking about Cool. emotional issues, right? हाँ, नहीं तो Like, मेरे को फिर भी कूल लगती है. अरे हो, thanks.
नहीं, but मेरा ये था कि I can't show someone that I have needs, or I can't show someone कि मुझे कुछ चीज़ों से anxiety होती है, या I can't show them my frustrations, because that's not what healthy people do. समझ हाँ, रहा है? जबकि मतलब how, ऑपोजिट है। हाँ, वही जबकि करते opposite है. हैं। हाँ, आई हाँ, थिंक हमको ये exactly. रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट हाँ, हाँ, वो हाँ. बेटर है। It is it is much better talking it out. Like, like I really enjoy like saying things to you without hesitating at all. कि मतलब I'm doing it because this transparency really improves things. It really heals things. भाई बहुत बढ़िया होता है। मेरे लिए तो ऐसे मतलब हाँ, इतना लाइट लग रहा है मुझे, मैं तो देखो समझा नहीं सकता बहुत कुछ। लाइट, बहुत लाइट, हाँ, honestly. मैं हाँ, बहुत इंसान की तरह बिहेव बहुत. कर सकता हाँ, it's like, हाँ, बहुत 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 बड़ा change था वो मेरे लिए. हूँ। And yeah, so this might sound like really hippie or woo-woo, but we had that conversation right on the eclipse night. अबे जा साली, You know. अबे हट, अबे हट, अबे हट। ये हिप्पी I'm नहीं, just saying. ये बेवकूफी है। I'm just saying. क्या वो एक्चुअली एक्लिप्स था उस दिन? हाँ, रात 11 बजे eclipse था उस दिन. Lunar और तू eclipse. है भी बंगाली साली। जादू टोना करा तूने मेरे ऊपर। Stop. तूने नहीं. तूने तूने जादू टोना। but उस मून मून का पीक होता है उस टाइम पे, आई थिंक, पावर्स का। शायद. But that conversation was very important. बहुत बहुत ज्यादा। Very. हम मून को थैंक्स करते हैं, आज रात को रिचुअल करते हैं इक्लिप्स को थैंक्स बोलने के लिए। Eclipse फिर एक से दो होने वाला बकरियां है. लगेगी, तू अपनी साइड से ला, मैं अपनी साइड से एक एक लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम. मैं शीफू को सैक्रिफाइस करना चाहूंगा। उसमें उसकी आत्मा आके तुझको टॉर्चर करेगी. क्या? उसकी आत्मा आके तुझे टॉर्चर करेगी नींद में. आई थिंक इसी नोट पे हमको खत्म कर देना चाहिए। रिचुअल करने चलना चाहिए। आजा, आजा. तेरे पास वो है, फायर प्लेस. ऐसे कौन सा फायर प्लेस होता है? नहीं, मतलब नॉट फायर प्लेस, सॉरी. क्या बोलते उसको, मैं भूल नकली गई. बंगाली है अरे तू, शाद तेको काला नहीं, जादू अरे, बोलते हैं। अरे भाई वो शादियों में लगाते हैं ना बीच में आग. उसको प्यार वो लोग बोलते हैं। रिलेटिव से लगाते हैं बोलते हैं, बट रिलेटिव्स भी लगाते हैं, बट उसको सॉरी. प्यार बोलते हैं। नहीं. अरे वो लोग शादी में घूमते रहते लगाता हैं है ना बीच में ऐसे. आग। अरे भाई आग जलाते हैं, फिर लोग घूमते रहते हैं ना ऐसे. उस आग को क्या बोलते हैं, उस आग के होल्डर को क्या बोलते हैं? मैं तेको आंसर नहीं देने वाला, मेरे को तेको सेटिस्फैक्शन नहीं देना, तू सोचती रहे इस बारे में। घुमाते तो सब है शासक. एवरीवन प्लेज गेम. इसी बात पे चलते हैं.